Flores Mathematics. So we have started the data types in Python, and in the data type session we have discussed like list, string, tuple, then dictionary, then boolean, this kind of thing, and their operation, their indexing, their slicing, how can you that key value pair, this kind all in detail. So अभी अगर तुम लोग नहीं देखे हो the data types we have discussed already, so please go and watch that videos, okay, because I have like एकदम वेरी बेसिक सा मैंने वो समझाया है कि कैसे डिक्लेयर कर, मतलब डिक्लेयर भी कैसे करते हैं वो भी मैंने सिखाया है. So there's the data type are in the very basic, I have already told in the previous videos. So let's talk about the set for today's session. So what is said actually? So basically said is taken that how can you declare the said is in the curly braces, okay. So there's मैंने पहले ही बोला था कि इधर ब्रैकेट भी एक important roles play करते हैं. For least you have to take first bracket, for said you have to take like curly braces, and for tuple what kind of, for indexing you have to take like third bracket, right? So for said, sets are declared using that curly braces, okay. For example, said 1 is 1 2 3 4 5. If we write these numbers within the first bracket, it defined as list. If we defined as the curly braces, it defined as the set, okay. So that parenthesis is also important, okay. Now set operations, there are different kind of set operations here. Basically what is set is मतलब set अलग क्या है list और dictionary और tuple से. Basically set ना कभी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होता, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट तुम रिमूव कर दोगे, ओके. सो डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ सेट आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, ये तुमको याद रखना होगा. लाइक सेट 2, ये इधर देखो मैं 5 को ना 5 टाइम्स मैंने दिया, लेकिन सेट 2 अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 कम्स इन 1 टाइम्स, ठीक है. तो क्या होता है सेट 2, मतलब सेट क्या होते हैं, इट्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन अ सेट आर ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, ओके. सो जस्ट रन करा के देखते हैं हम लोग ये, मजा आ जाएगा फिर, ओके. सो लेट्स टेक another chunk of codes like set 2. देखो अगर मैं इधर सेट 2 को प्रिंट कराऊं तो क्या आना चाहिए, मैंने अभी तुमको बोला कि 5 1 टाइम्स आना चाहिए. सी 5 इज हियर 1 टाइम्स, ओके. नाउ सेट 1 को मैं इधर डिफाइन कर देती हूँ. सी सेट 1 भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं डिफाइन कर रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू राइट, मतलब हम लोग इसके बाद ऑपरेशन करने जाते हैं. मतलब देखो क्या होगा, बी इधर मैं 6 को रख दे रही हूँ, 1 2 3 6 7. Now our declaration of set is done. So how can you declare a set? Basically set is declared within a curly braces. And what is the specialty of set? Set removes the duplicate elements automatically, okay. So that's all for अभी. देखो अभी हम ऑपरेशन में जाएंगे. So let's talk about operations in set. First is set 1 minus set 2. What does it mean? Basically it's difference. So difference returns element in one set but not in another, okay. So that is first operation is difference. ये क्या होगा, अगर मैं इधर set 1 set 2 मैंने डिफाइन कर दी, अब इसके बाद मैं दिखा रही हूँ तुमको set 1 minus set 2. Just take it and print it here. So देखते हैं क्या होता है. सी 6 and 7 मतलब क्या हुआ इसमें, देखो 6 and 7 क्यों आया, बिकॉज सेट 1 में देखो 1 2 3 था और सेट 2 में भी 1 2 3 था, 4 मतलब इधर 4 5 एक्स्ट्रा था, 6 7 एक्स्ट्रा था. इधर हम लोग क्या किया, सेट 1 से सेट 2 को निकाल दिया. मतलब देखो सेट 2 में जो एलिमेंट था 1 2 3 वो हम लोग इधर से रिमूव कर दी, सिर्फ बचा है 6 7, ठीक है. सो डिफरेंस क्या होता है, इधर मैंने लिख दिया कि रिटर्न्स एलिमेंट्स इन वन सेट बट नॉट इन अनदर. लाइक सेट 1 में 6 और 7 जो था, जो सेट 2 में नहीं था, ओके. सो दैट्स हाउ यू ऑपरेट द डिफरेंस, okay. So now second operation is, this is the difference operator. Basically it remove the element which contain the set 2, right. So set 1 minus set 2 is giving that 6 6 and 7.
Basically 1 to 3 are in the set 2, so it's remove that element. Okay, now coming to this chapter, coming where next operation, this. So basically what is done, see, it is union, so it combines all unique elements from both set. Example is set 1, this. So this is union. Okay, so it's combined all unique element. So see, basically what is 1 2 3 6 7. So this is the set 1, and 1 2 3 4 5. So this is the set 2. So what is the unique elements of both of the set, which is the union operator. Okay, so let's execute it, and what it happened, see, this is set 1 is not defined. Okay, so let's define it. Okay, so this is 1 2 3 4 5 6 7. Basically it combines all the unique elements. Okay, so 1 2 3 are two times, so it only occurs in one time, and then 4 5 6 7. Okay, so this is the union operator. And then is intersection, which is ampersand, like which what is done. So okay, so let's run it, then talk about it. So basically see, in the intersection that returns element कॉमन टू बोथ सेट. ओके, सो बेसिकली इंटरसेक्ट क्या होता है ना, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आते हैं, जैसे देखो सेट 1 एंड सेट 2, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3. सो 1 2 3 दिस थ्री numbers are common in set 1 and set 2, so intersect is basically this. Okay, now last is systematic difference. Okay, systematic difference, it returns element in either set but not in both. ओके, सो ये वेरी वेरी मतलब थोड़ा समझ के देखना कि ये क्या करेगा. अच्छा, पहले मैं इसे दे देती हूँ, उसके बाद मैं बात करती हूँ ताकि रन हो जाए उसी टाइम में. ओके, सो ये क्या करेगा ना, ये देखो कि 4 5 6 7, सॉरी, एक मिनट, there's some problem. ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेती हूँ. फिर अभी हम सेट पढ़ा, तो सेट के डिक्लेरेशन कैसा होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर. उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं ताकि सेट में हम ऑपरेशन कर पाए. तो हम लोग सेट ऑपरेशन में डिफरेंस ऑपरेटर देखा, देन यूनियन देखा, देन इंटरसेक्शन देखा, एंड नाउ इट्स द ऑपरेटर इज द सिस्टमेटिक डिफरेंस. लाइक देखो इधर सेट 1 में क्या था, सेट 1 में था 1 2 3 6 7, एंड सेट 2 में क्या था 1 2 3 4 5. एंड दिस सिस्टमेटिक डिफरेंस क्या किया, देखो इसमें इसमें 4 5 इंक्लूड है जो इसमें नहीं है, मतलब सेट 1 में नहीं है, और सेट 1 में 6 7 है जो कि सेट 2 में नहीं है. तो ये वो देते 4 5 6 7. सो बेसिकली इट रिटर्न्स एलिमेंट इन आइदर सेट बट नॉट इन बोथ. ओके, कोई एक सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, वो देते हैं ये सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, सॉरी सिस्टमेटिक बोल रही थी, सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, सो दैट्स अबाउट द सेट ऑपरेशन. नाउ सेट मेथड्स क्या है, एक होता है यूनियन, इट्स ऑल्सो कॉम्बाइंस ऑल यूनिक एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट. सो बेसिकली ये क्या होता है ना, दोनों सेट में ये मेथड्स होते हैं कि सेट 1 के साथ सेट 2 को यूनियन कर दो. तो और इंटरसेक्ट क्या होता है, डिफरेंट एक ही होता है. मतलब देखो एक में क्या हुआ, मतलब दोनों का, एक में हम लोग ऑपरेटर यूज किए हैं जो कि एम्परसेंट बोलो या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बोलो, वो हम लोग यूज किए, और इसमें हम लिख रहे हैं जैसे फंक्शन लिखते हैं. ठीक है, सो लाइक सेट ऑन, देखो ये सेम रिजल्ट दिए हैं जो यूनियन के दिए, लेकिन ये मेथड्स है डॉट यूनियन. सो सेट 1 के साथ सेट 2 यूनियन करना चाह रहे थे. और इंटरसेक्शन भी वही देगा रिजल्ट, एक को हम ले मतलब ऑपरेशन फंक्शन यूज करके किया, दैट इज मेथड, और एक को हमने ऑपरेटर यूज करके किया. ओके, सो सेट 1 इंटरसेक्ट सेट 2. सो इसमें क्या देगा, कॉमन एलिमेंट्स देगा, राइट. जैसे 1 2 3 आर कॉमन इन बोथ द सेट. एंड नाउ इज डिफरेंस, एंड दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस. सो ये चार, एक हम लोग ऑपरेटर मतलब ऑपरेशन कैसे करते हैं, मतलब ये जो ऑपरेटर होता है डिफरेंस के लिए माइनस, देन दिस, देन एम्परसेंड, देन दिस पावर, और एक हम लोग लिख के कर सकते हैं. मतलब दोनों ही तरह होता है सेट ऑपरेशन एंड सेट मेथड्स. सो दिस ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट बेसिकली basic properties and manipulation of sets in Python. Okay,
ना मैंने ना अभी तक जो जो डेटा टाइप किए हैं, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। सो आज डेटा टाइप का लास्ट डे था, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो इसका पहले वाला भी डेटा टाइप, सो देख लेना एक बार। ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल ऑफ ईच डेटा टाइप। तो इधर ना मैंने एकदम शॉर्ट में, मतलब जो जो अभी तक किए हैं उसका एग्जाम्पल मैंने रियल वर्ल्ड में कैसे लिखते हैं उसका एक स्ट्रक्चर दिया। इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हारा एक जगह रह जाए कि क्या क्या डेटा टाइप्स होता है ना, उसका एग्जाम्पल एंड हाउ टू डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब एक जगह में रह जाए। ओके, सो हियर द सपोज एग्जाम्पल दैट रियल वर्ल्ड में कैसे, दैट काउंटिंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ स्टोर, so which declare in the integer. Okay, now representing the price of an item. Okay, so 19.99, so item price is a float number. Then complex number like electrical engineering calculation में use होता है. Okay, now string example like storing a customer name, which is a real world example of string. So John Doe. Okay, now list example, so sorting a list of items in a shopping cart. हम लोग शॉपिंग करते हैं फिर कार्ट में रखते हैं, सो वो लिस्ट होता है जैसे एप्पल, बनाना, मिल्क, दिस काइंड ऑफ। नाउ टपल नंबर, सो स्टोरिंग इम्यूटेबल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हम लोग कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई। एंड इम्यूटेबल क्या होता है, मैंने टपल के इम्यूटेबल कैसे देखते हैं ये भी हमने टपल के सेशन में कर चुका था, राइट। नो डिक्शनरी एग्जांपल, सो स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, and then boolean example that if a customer is a premium member or not, so that's true or false is a boolean example. And today we have discussed about set, so storing unique product id, basically sets का speciality क्या होता है, ये unique element रखते हैं, right। सो डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, मैंने बोला था कि इसको मैंने वीडियोस में एग्जांपल में मतलब डिस्कस कर दूंगी, तो आज ही बोल देते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जो हम लोग उसका क्रिएट करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो म्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर देयर क्रिएशन, while immutable data types cannot be modified once they are created. Okay, so here's a detailed comparison like definition. So it's allow क्या करते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग एक बार, अगर मतलब देखो अगर लिस्ट में और डिक्शनरी में मैंने तुमको दिखाया था कि एक बार करने के बाद हम लोग उसको जैसे डिक्शनरी अपडेट होते हैं। डिक्शनरी में मैंने, अगर तुम लोग देखे हो वीडियो, तो इन डिक्शनरी आई हैव शोन यू दैट there is a dictionary called employee, and there I update a new employee 4 in dictionary. Okay, and also list. लेकिन whenever we are talking about tuple, so that doesn't like that shows a error, right। and मैंने ये कर भी चुका था in the tuple discussion। then in tuple whenever we changing the index, the first position or second position, it will raise a type error, ये मैंने करके दिखाया भी था, राइट। सो दैट्स अगर तुम ना देखे हो तो टापल में एक बार देख लेना, ठीक है। and now behavior, so you can add, remove or change elements in place, and useful when you need to modify data frequently. And in immutable data type you cannot change the content directly, instead you create a new object with the desired change. Okay, and useful that for should remain constant or when used as key in dictionary. Okay, so that's the key difference like modification, performance and usability. Okay, so that's all for today, and that's all for data type also. So I hope you have a very clear idea about data type, what data types is, how many data types allow in Python, and they are also their modification, their different kind of operation. Okay, so thank you.